First of all, I would like to thank my professors जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूं। तो जी मैं जादुई खिड़कियों के ऊपर काम कर रहा हूं जो हवा में खुलेगी और हमें दूसरे दुनियाओं के साथ कनेक्ट करेगी। और मैं कल एवेंजर्स एंड गेम तो बिल्कुल भी नहीं देखा हूं और न ये आइडिया मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज से लिया है। बेटा क्या हम इन्हें पोर्टल्स कह सकते हैं? सर जी आपकी मर्जी, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन मैं तो इन्हें प्यार से जादुई खिड़कियां कहता हूँ। लेकिन बेटा आप इन पोर्टल से जादुई खिड़कियों का करोगे क्या? सर जी मैं सबसे पहले अपने तमाम मनहूस दोस्तों को इसके अंदर फेंकूंगा और फिर यहाँ से खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। खलास, टाटा, बाय बाय। क्यों बेटा, क्या क्या इन्होंने? सर जी ये मुझे हर वक्त तंग करते रहते हैं, जड़गो जान कह के। तो इसमें क्या है? अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास कोई प्रोटोटाइप वगैरह है भी कि नहीं? तुम इन जादुई खिड़कियों को खोलोगे कैसे? सर जी ऐसे अक्कू बक्कू से सिंदक्कू वा मिलाड़ा पत्र पक्कू अलकाई। अलकाई अक्कू बक्कू से सिंदक्कू अलकदस चलुशो। उठो मफ्तौर, बाहर निकलो, कोई काम धंधा ढूंढ लो। कब तक सोए रहोगे? बाहर मेहमान आए, जाओ बाजार से दूध लेकर आओ, और हाँ अंडे भी। یو ځل بیا په خیر راغلی خوږو ملګرو جو ہمارے جیسی گریجویٹس ہوں. انو کی لائف سے شاید آپ کو یہ لگا ہو کہ ہمارے گریجویٹس دنیا کے فارغ ترین یعنی بے روزگار لوگ ہوں گے. ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ بات اس کی بالکل برعکس ہے. یہ تو اصل میں دنیا کی مصروف ترین مخلوق ہے. یہ صرف اپنے فیلڈ کو چھوڑ کر باقی تمام فیلڈز میں گھس جاتے. اب آپ انو کی مثال لے لیں، ان کو پورٹلز اب صرف خواب میں ہی نظر آتے. باقی تو وہ ایک ٹریڈر ہے اور ایک پب جی پرو پلیئر بھی اور ایک ڈراپ شپر بھی رہ چکا ہے اور درجنوں مرغیاں بھی پال رکھی ہے. اور اس کے علاوہ آج کل ہیلتھ ایڈوائزر بھی بنا پھرتا ہے. کہتا ہے پٹھان ساگ زیادہ کھایا کرو، اس میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے. میں نے بھی کہہ دیا ساگ میں اگر ہڑیا ہو تو بے شک کھا لوں. انو کیا کہتے ہو؟ مرغیاں تو ماشاء اللہ سے انڈے دینے لگ پڑی ہے. الکائی در بکمڑ سمرے کچھ اشمو مچمو دل دب سنا ویک ورے. ٹکتا ڈن. یار عاطف ایک تو ہی ہے جو میرا درد سمجھ سکتا ہے، جو میری سچویشن سے واقف ہے. باقی تو پوری دنیا میری جان لینے پہ تلی ہے. اب میں پرائیویٹ ٹیچنگ نہ کروں تو کیا کروں؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ہاں نا، انویسٹمنٹ ٹھیک ہے جو بندہ اپنا بزنس شروع. ہاں فرمان بھائی کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ ٹھیک ہوں شانی بھائی، کچھ خاص نہیں، بس ایس کے لیے تیاری کر رہا ہوں مزے سے. اچھا میں بھی کر رہا ہوں سیسس کے لیے تیاری. چھوٹے موٹے جابس مجھے بھی نہیں پسند. چلو چلتا ہوں. باہر بھی نہیں جا سکتا ہوں، گھر کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ابو جو بیمار رہتے. ارے فرمان بھائی یہ تم ہو، پہچانا ہی نہیں، بڑے دبلے پتلے ہو گئے ہو یار. کیا کر رہے ہو آج کل؟ ڈائٹنگ کر رہا ہوں آج کل. باقی بس ایم ایس کے لیے باہر جانے کا پلان ہے. تم سناؤ محسن بھائی؟ میرا تو پی ایچ ڈی کرنے کا پلان ہے. اچھا چلتا ہوں، اللہ حافظ. اللہ حافظ. یار ویسے تمہارے ابو نے بچپن میں وہ اسکول والی زمین نہ بھیجی ہوتی تو کام بڑا اچھا ہوتا. ہاں یار، ابو کی اسی غلطی کی وجہ سے تو آج ہم یہاں ہے. اب کوئی ایک گھوڑے کی عوض بھی زمین بیچتا ہے. دیکھ لو نا اب کتنا بڑا اسکول بنا لیا ہے اس ہم پڑھ گھوڑے والے نے. 1000 سے بھی زیادہ اسٹرینتھ ہے اس کی. ارے فرمان بیٹا کیسے ہو؟ تمہارے ابو کیسے؟ جی انکل ٹھیک ہو، ابو بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑا گھٹنوں کا مسئلہ رہتا ہے. ویسے کیا کر رہے ہو آج کل؟ پٹھان کیا میری آنکھیں سرخ ہے؟ ہاں سرخ تو دکھ رہی ہے. کیوں کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں بہت غصہ ہوں. اب اگر اس دفعہ کسی نے پوچھا کہ انو کیا کر رہے ہو آج کل، تو میں اس کلاڑی سے اس کا بیجا نکال کے باربیکیو. انو کیا کر رہے ہو آج کل؟ الا رک تمہاری ڈائپر کو چینج کراؤ. یاجوج ماجوج کی اولاد، رک ابھی تمہیں بتا دو کہ میں کیا کرتا ہوں. الا کائی. انو اب چھوڑو بھی، بچے کی جان لوگے کیا؟ یار پٹھان پاگل بنا دیا ہے لوگوں نے.
अभी 1 साल ही तो हुआ है ग्रेजुएट हुए, नाक में दम कर रखा है हराम खोरों ने। जिससे मिलू कहता है वैसे क्या कर रहे हो आजकल। अब हम कैसे समझाएं इनको कि क्या कुछ नहीं कर रहे, बस फिलहाल पैसे नहीं बना पा रहे। ये मसला जनरेशन गैप का है। आज के वक्त 50 साल से ऊपर के जितने भी अंकल आंटियां मौजूद हैं, उन्होंने इस मुल्क का प्राइम टाइम देखा है और इसी में जी रहे हैं। जहां 2000 से पहले अगर आप मैट्रिक भी कर लेते डी ग्रेड पे ही सही, तो बैक पर 3 डिपार्टमेंट जबरदस्ती घसीट कर आपको जॉब्स पे रखती आला ओहदों पर। वही लोग कामयाब तस्वुर किए जाते थे, शादियां भी उनकी हो जाती थी और उम्रें भी खूब कर लेते थे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब वही अंकल आंटियां जब पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो आजकल, तो उनका मतलब दरअसल ये होता है कि आप मंदरजा झेल ऑप्शंस में चूज करके बताओ कि क्या आप वापडा में हो या CNW में या ACDC हो, प्रोफेसर हो या कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर। अब अगर आपने गलती से भी इन ऑप्शंस के अलावा ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग या यूट्यूब का बता दो तो एक नाखुशगवार लंबी सी बेस चढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए आपको झूठ मूठ का सहारा लेना पड़ता है। शबीर साहब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, घर का गुजारा मुश्किल है। हाँ तुम सरकारी लोग तो फिर भी महीने के आखिर में सैलरी ले लेते हो, हमारा तो सारा कारोबार ही ठप है। ऐशा बेटी कैसी हो, मैट्रिक कैसे गया आपका? तुम्हारी अम्मी बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। जी आंटी ठीक हो, बस मेहनत करती हूँ। 1180 मार्क्स आए मेरे आउट ऑफ 1200। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये 20 मार्क्स क्यों कट गए? आजकल तो लोग 1200 में 1280 भी ले लेते हैं, है ना ज़हरा बेटी? आयशा तो आई इसलिए कि वो ज़हरा से मशवरा कर ले कि अब मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाए। जी आंटी मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ। हाँ? अन्नू बेटा तुम्हारा नाम कब से ज़हरा पड़ गया? वैसे आयशा किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है? मेडिसिन में। और वो क्यों? क्योंकि क्लास की सारी काबिल लड़कियां मेडिकल में जाना चाहती है। सो यू आर फॉलोइंग द हर्ड राइट? मेरी मानो तो कंप्यूटर के बारे में सोचो, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। और बेटी आप क्यों मेडिकल कर रही हो? क्योंकि मेरा समझाने वाला कोई नहीं था। वैसे अन्नू बेटा क्या कर रहा है आजकल? इंजीनियरिंग करके। अबे तेरी। जी अंकल मेरे पास टाइम नहीं है कुछ करने को। हैं? हाँ? मेरा मतलब है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, खाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं एक ऐसे AI रोबोट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो अंडे देगी, बहुत सारे अंडे। फिर उन अंडों को मैं बाजार में भेजूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे। सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। बेटा इसके बाद कोई ऐसा रोबोट भी बनाओ जो खालिस दूध बनाए, दूध का खर्चा भी बचत होगा और खालिस दूध भी मिलेगा। पापा फिक्र ना करो। भाई साहब क्या जमाना आ चुका है, अब अंडे और दूध भी रोबोट्स ही देंगी। जी शबीर साहब बड़े परेशान कुन हालात है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। आप लोग बेटे मैं जरा बच्चों को देख के आती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, एक और जानी बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आइए जानते हैं बाबा की कहानी, बाबा की जुबानी। क्या करता, PhD भी कर रखी है, फिर भी कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। मजबूर होकर इस धंधे में घुस पड़ा हूँ। मेरा मसला ये है, शायद मैंने तालीम पैसा कमाने के लिए की थी और बाद में पता चला तालीम पैसे की गारंटी कहाँ देता है। एनीवे, अब जेल से निकलूंगा तो कोई अच्छा और लीगल बिजनेस शुरू करूंगा इंशाल्लाह। हम तालीम करते ही इसीलिए और उस पिला को खर्च ही इसीलिए करते कि ग्रेजुएट होके कहीं जॉब लग जाएगी तो साल भर इधर उधर हाथ मार के इन्वेस्टमेंट भी रिकवर होगी, बल्कि उम्र भर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तालीम को हमने बिजनेस बना दिया है। करोड़ 1.5 करोड़ मेडिकल और इंजीनियरिंग के ऊपर लगाओ और जिंदगी भर प्रॉफिट कमाओ। पठान, एजुकेशन अगर हम इस नियत से करें कि हमें शऊर हासिल हो, अपनी जिंदगी का मकसद और अपने रब की पहचान हो, तो यकीनन हम इस सफर को एंजॉय भी करेंगे। और अगर बाद में नौकरी न भी लगे तो मायूसी न होगी। बाकी रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है और पैसा तो 90% बिजनेस में रखा है। नमड़ा, वैसे अन्नू क्या करते हो आजकल? नो यार पठान तुम भी। मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो मड़ा। सो मेरे प्यारे ग्रेजुएट्स, आपके ख्याल में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? हुकूमत की नाअहली, इदारों की नाकामी या स्टूडेंट्स का कसूर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जाता हूँ अन्नू को मनाने। सो मिलता हूँ आपसे अगली शो में। टिल देन, पठान इज गॉन।